Right now, training is an organized activity. Training is an organized activity for increasing the knowledge and skills of people. Training is an organized activity for increasing the knowledge and skills of people for a definite purpose. For a definite purpose. It is the act of increasing the knowledge It is the act of what happens. So ये छूट गया है. आगे से कंटिन्यू करो, पीछे वाला बात में लिखना. Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. For doing a particular job. It is a continuous process. It is a continuous process. And the managers are continuously engaged. And the managers are continuously engaged in training their subordinates. In training their subordinates. Next heading, objectives of training. Objectives of training. Everyone done? यहाँ से लिखिए, fast लिखिए. Objectives of training. Point number 1, to increase the knowledge of workers in doing specific jobs. To increase the knowledge of workers in doing specific jobs. Two, to bring about change in the attitude of workers. To bring about change in the attitude of the workers. Third, to improve the overall performance of the organization. To improve the overall performance of the organization. Next, to handle materials, machines, to handle material, machines and equipments efficiently and thus check wastage of time and resources. And thus check wastage of time and resources. Next, to reduce accidents. To reduce accidents by providing safety training. By providing safety training.
Last, to prepare workers for higher jobs. To prepare workers for higher jobs by developing advanced skills. By developing advanced skills. Next heading, significance of training. बुलेट पॉइंट्स करके लिखते जाना. 1, क्विक लर्निंग. 2, higher productivity. 3, standardization of procedure. 3, standardization of procedure. 4, less supervision. 5, economical operations. 6, higher morale. 7th, better management. 'Next topic, benefit of training for employees. Benefit of training for employees. बुलेट पॉइंट्स करके लिखते जाइए. 1, confidence. 2, new skills. 3, promotion. 4, higher earning. 5, adaptability. Done? Now, write down types of trainings. Types of trainings. जैसे पढ़ाए थे ना क्लास में, चार्ट बना के ऑन द जॉब एक साइड और ऑफ द जॉब एक साइड, वैसे ड्रॉ कर लीजिए और एक साइड पे लिखिए ऑन द जॉब और दूसरे पे लिखिए ऑफ द जॉब. डन? मेक योर चार्ट. ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लिखते जाइए. 1, कोचिंग. 1, कोचिंग. 2, understudy. Understudy. 3, job rotation. 4, multiple management. 5th, committee assignment. Committee assignment. दूसरा लिखो, ऑफ द जॉब में लिखो. नंबर 1, special courses. 2, special projects. 3, special projects. हो गया. 3, conference training. Conference training. 4, sensitivity training. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को और क्या कहा जाता है? लेबोरेटरी. ब्रैकेट में डाल लो. ब्रैकेट में लिखो टी ग्रुप ट्रेनिंग कॉमा लेबोरेटरी ट्रेनिंग.
Next. Next, role play. Next, programmed instructions. Programmed instructions. Next, simulation method. Simulation माने कॉपी करना, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना रियल एनवायरनमेंट का, सिमुलेशन मेथड्स लिखना, उसके ब्रैकेट में मेथड्स लिखना, SIMULATING, सिम्युलेटिंग. सिमुलेटिंग मेथड्स, ठीक है, उसमें ब्रैकेट में लिखिए केस स्टडी, यानी केस स्टडी इज अ काइंड ऑफ सिमुलेटिंग मेथड. केस स्टडी, कॉमा मैनेजमेंट गेम्स, कॉमा इन बास्केट एनालिसिस, इन बास्केट IN इन छोटा सा हाइफन, बास्केट एनालिसिस. सिमुलेशन मेथड्स लिखिए और उसमें 3 टाइप का मेथड होता है. द फर्स्ट वन इज केस स्टडी, द अदर वन इज मैनेजमेंट गेम्स एंड द अदर वन इज इन बास्केट एनालिसिस. और एक लास्ट में लिखो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. नहीं, दिस इज अनदर पॉइंट, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. Next topic, right? Management development. Management development. See, I have already told you कि जो management development methods हैं वो mostly off the job training methods से होते हैं, fine? And there are different purposes. Training का क्या purpose है उसके हिसाब से choose किया जाता है कि कौन सा method आपके training purpose के लिए suitable है. Understood? Now, right, management development. The achievement of objectives of any organization the achievement of objectives of an organization depends to a great extent on the quality of its managers. On the quality of its managers. Companies with similar raw material equipments and technical know-how show different results because of the quality of their executives. Show different results because of the quality of their executives. Quality of management explains the difference in price policy, inventory policy, labor policy,
price policy, inventory policy, labor policy, marketing policy, of the organization. Therefore, better the management, better the organization. Better the management, better the organization. Now, let's quickly, okay? Now, let's discuss on why management development is so important. See, I already told you that development is a term which is not associated with the workers. Management development का मतलब है executive. The organization owes the responsibility of developing the executives into managers and managers into better managers. Okay? Okay? हाँ. So, क्यों मैनेजर को डेवलप करना इतना इम्पोर्टेंट है? एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो डेवलप होगा तो वो अच्छे से काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, इफेक्टिव काम कर, इसके अलावा मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होना, मैनेजर्स का डेवलप होना क्यों जरूरी? I give you 2 minutes. Write bullet points in your copy. लिखिए, सोच के लिखिए, आप क्या क्या सोच पाते हैं? चलो डिस्कस करो, समझ में आ जाए. बताओ, मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्यों जरूरी होता है? देखो, फिर वही पॉइंट आ गया, ग्रोथ के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है. उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, हाँ, see, personal growth is fine, but then I'm talking about the overall need for an organization to develop managers. Personal growth तो होगा ही, obviously. ये बात हो चुकी है. इसके अलावा आप लोग लूप में चलते हैं. फ्यूचर की पर्सन बोलो, फ्यूचर की पर्सन, ठीक है. और क्यों जरूरी है डेवलप करना, बताओ. कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैनेजर्स को डेवलप करना, डेवलप होना सिर्फ शौकिया चीज नहीं है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या रीजन हो सकता है? बोलो. अगर मैनेजर डेवलप होगा, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में वो रिटेन करना चाहिए उसको ऑर्गेनाइजेशन. नो, आई एम आस्किंग यू द फैक्टर्स, द रीजंस. क्या रीजन है कि उसको डेवलप करना जरूरी है? रिटेन करके क्या करोगे? अच्छा काम कराओगे तो फिर तो बात अच्छा काम पे ही आ गई. इसके डेवलपमेंट ज्यादा कंपनी के मैनेजर से ज्यादा तुम लोग tell me the points, external factors. तुमको पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा से क्यों पढ़ना जरूरी है? मैम बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए, फिर और मैम बहुत अच्छा फील करने के लिए, फिर मैम रिपोर्ट कार्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा. यही तो बोल रहे हो घुमा फिरा के तुम लोग. ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, और फिर द साइकिल इज रिपीटिंग. First point, there is a rapid technology change in the market.
this is a time where technological changes are very frequent. The modern organizations, they have to cope up with the change in technology, and if you fail to do so, you cannot prosper as a business organization. IT वगैरह में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है, प्रोजेक्ट बदला, टेक्नोलॉजी बदली. So if you have been allotted a certain project, you need to learn the technology on which the project is being done, right? So the managers, they are supposed to learn those new technologies and work according to the needs of the business. ठीक है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, पहले पेरोल का सारा काम मैन्युअली होता था, अब पेरोल सब कुछ टेक्नोलॉजी पे चेंज हो रहा है. अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ह्यूज है, लेकिन भाई हम तो मैन्युअली काम करेंगे, कितने दिन तक चलेगा वो? क्योंकि वो कट डाउन नहीं करेगा आपका टाइम, वो कट डाउन नहीं करेगा आपका कॉस्ट, एफर्ट्स, एफिशिएंसी. अंडरस्टूड? सेकेंड, पहला टेक्नोलॉजी है. दूसरा देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन समझते हैं आप लोग? पढ़े होंगे. सेकंड आप लोग को है थोड़ा बहुत पढ़ना, शायद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ये सब पढ़ना था ना. वो तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट होता है. इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप between an employer and a worker that arises due to the change in that arises due to the nature of work is known as industrial relations. Industrial relations वहां होगा जहां वेज रिलेशनशिप होगा. ठीक है? जहां भी वेज की बात होगी उसको आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बात करेंगे. So industrial relation initially used to be very simple. मालिक और नौकर टाइप्स रिलेशनशिप शुरू हुआ और उसी तरीके से फ्लरिश हुआ. तो इनिशियली इट वाज वेरी सिंपल. इंडस्ट्रियल रिलेशन ये बहुत बड़ा चैप्टर है. एचआर का 50% यही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसने हमारी इकोनॉमी को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक कैपिटलिस्ट और दूसरे लेबर क्लास, जिन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन किया, जैसे लैंड, कैपिटल, मशीन, इक्विपमेंट, वो हो गए कैपिटलिस्ट. एंड द वर्किंग क्लास हैड just their hours of work to sell. They were divorced from owning the means of production, so they became the working class, labor class. ठीक है? शुरू में ये बहुत सिंपल था इंडस्ट्रियल रिलेशन. तब ये माना जाता था कि only the relationship between an employer and a worker, an employer and a trade union and trade union, worker and worker was industrial relation. Okay, but now in the broad sense, if we try to understand industrial relations, we find that every third thing that affects the industrial relation is also counted in industrial relation. जैसे wage fixing machinery. आपको ये पता है ना कि मिनिमम वेज या जो फिक्स होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है. So that wage fixing machinery also comes in the precinct of industrial relations. Strike, grievance, discipline, code of conduct, labor code, industrial code, national tribunal, wage board, ये सारी चीजें अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करती है. हमारे और क्यों हम लोग इसको डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं, क्यों हम तुमको बता रहे हैं? क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है आज भी, लाइक माइंस मोस्टली विच डिपेंड्स अपॉन लेबर, लाइक फैक्ट्रीज, यहाँ पर आए दिन चुटपुट कुछ ना कुछ बात होती रहती है लेबर के साथ.
The managers are constantly busy in addressing to the problems between management and labor or between labor and labor. तो पहले जहां ये चीजें बहुत सिंपल थी, अब उतनी सिंपल नहीं है. In that case, a manager needs to be smart enough, knowledgeable enough, and skillful enough to handle these situations very wisely. अब ज्यादा केस, अब वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वाला एटीट्यूड नहीं है कि हंटर से काम करा के वर्कर को काम करा रहे हैं. ओके, you have to cater to their demands no matter how small that worker is. ये सब जनरली होता है. जैसे अगर आप किसी लोकल वर्कर पे अटैक कर रहे हैं, लोगों ने उसको, आपने उसको बाहर निकाला कंपनी ने, तो ऑर्गेनाइजेशन में बाहर निकाले जाने का कुछ और मतलब निकाल दिया कि लोकल को हैरेस कर रहा है. अब ग्रुप बना लिया, काम नहीं करेंगे, वहां के लोकल लोग आ गए, तो जो रिपरकशंस होता है या कॉन्सिक्वेंस होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. स्ट्राइक हो सकता है अगर लेबर यूनाइट कर गए तो, और पूरा प्रोडक्शन ठप पड़ जाएगा. Under those circumstances, a manager needs to develop himself for the skills, the art of, जैसे HR मैनेजर है, प्रॉब्लम होगा तो HR मैनेजर के पास जाइएगा, right? And then when you go there, the manager should be skillful enough, the manager should be smart enough. और आपका स्मार्टनेस सिर्फ अच्छा बोलने से नहीं होता है, आपका स्मार्टनेस आपकी नॉलेज से आता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस वक्त नॉलेज दिखाना है, किस वक्त अपना आर्ट यूज करना है. अंडरस्टूड? लेबर को तुम लॉ समझाओगे क्या? नहीं समझाओगे ना, वहां तो तुम्हारे लॉ से ऊपर भी चीजें काम कर रही हैं. That is why a manager needs to be developed. Understood? टेक्नोलॉजी हुआ, लेबर रिलेशनशिप हुआ, और क्या रीजन हो सकता है? देखो, हमारी सोसाइटी में द कंज्यूमर बिहेवियर इज अ मेजर एरिया ऑफ स्टडी. पहले जैसे नहीं है कि पहले जैसे पापा लोग से पूछना कि टीवी खरीदने के लिए अगर जाते थे तो उनको बोलता था बैठिए, 2 कस्टमर है, फिर हम आपको डील करते हैं. अभी जाओ तुम खरीदने के लिए, देखो कैसे लटक जाएगा 4 लोग तुम्हारे पीछे, और जब तक खरीदवा न दे वो सांस नहीं लेता. राइट? दिस इज हाउ द मार्केटिंग एंड सेल ऑफ गुड्स हैज चेंज्ड. और सिर्फ इतना ही नहीं, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज्यादा है इन लोगों की. ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, 3 बार सर्विसिंग देगा, वो खुद रिमाइंडर देगा कि आपकी सर्विसिंग बाकी है. Everything. This is how the business pattern has changed. Now, consumer को जब consumer behavior इतना change हुआ है, तो लोग socially aware भी हुए. अब इंटरनेट वगैरह आ जाने से क्या है कि आपको कोई डाउट होता है तो फटाफट गूगल करते हैं ना कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. So the customer has become more aware of his or her rights. Also, there are certain areas which change very rapidly. One such area is the area of women apparel. Women clothing का स्टाइल बहुत तेजी से चेंज होने वाले मार्केट में से एक है. जैसे इंडिया में उतना ज्यादा कल्चर नहीं है, बट टेडी बेयर भी एक सॉफ्ट टॉयज, उसका भी मार्केट फॉरेन में बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से चेंज होता है, मार्केट से बाहर हो जाता है. वुमेन अपैरल इन इंडिया. ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जो कुर्तीज वगैरह डब्ल्यू और बीबा में लगती हैं, वो कुर्तीज एक सीजन के लिए डिजाइन होती है. द नेक्स्ट सीजन दे रिमूव इट. हाउ डू दे रिमूव इट? पहले वो अपने शॉप में 50% ऑफ में निकालता है, वहां से जो बच गया उसको ऑनलाइन निकाला जाता है. ठीक है, क्योंकि दे कैन नॉट सेल इट इन द न्यू सीजन. न्यू सीजन के लिए अलग डिजाइन है, अलग मार्केटिंग है. You cannot repeat those designs, and these are big brands. Okay? तो इतनी चीजें अगर चेंज हो रही हैं और इतना रैपिडली अगर चेंज हो रही हैं, the manager needs to be very, very aware of all these. He has to get into the proper scanning of and changing consumer behavior and business dynamics around him. तो जब हम कहते हैं कि ट्रेनिंग दी जा रही है मैनेजर को, तो ये ट्रेनिंग सिर्फ एक एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं होती है.
There is lot more than that. Understood? इसलिए मैनेजर का डेवलपमेंट जरूरी होता है कि जितना टैलेंटेड मैनेजर होगा उतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी. Understood? Done. With this we complete training and development. नेक्स्ट क्लास हम आपको एक छोटा सा टॉपिक है लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म आप लोगों के साथ ही डिस्कस करेंगे. यू विल डिस्कस एंड राइट एंड दैट विल बी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट क्लास.